Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video, we will discuss set 3 or of this series. So basically, focus here. Read, pause the video, read the set, and these are the questions. 1, 2, 3, 4, 5 questions are data, and one question is with options. Now let's see. So let's understand the set first. A wholesaler rice trader has a large number of weights of 1 kg each. Okay, he also has a number of containers and boxes of negligible weight with him. तो उसके पास कुछ containers भी हैं और कुछ boxes भी हैं, right? He has some containers, right? And he has some boxes also, right? Each container holds exactly two weights out of the weights with him. So this container will hold two weights. The trader places at least one weight in each box. So greater than one weight should be there in each box, with no upper limit of weights. He uses at least one container, and for X such containers used, he uses X plus one boxes, right? So if he use X container, he will use X plus one box, right? And the minimum value of X is greater than equal to 1, right? Suppose he has 12 weights and uses two containers. He has 12 weights. If he is using two containers, that means there will be three boxes. Each container will contain two weights. So these three boxes should have 8, each 2 weights, and these three boxes should have 8 weights. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक को 2 वेट देंगे तो दो के पास 4 वेट्स हो जाएंगे. टोटल वेट हमारे पास कितने हैं? 12, राइट? यहाँ पे दिया भी हुआ है. Suppose he has 12 weights and uses two containers, therefore he uses 2 plus 1 3 boxes, right? Each container contains 2 weights. Okay, the remaining 8 weights can be distributed among 3 box in any way such that each box has at least one weight. हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया था, each box should have at least one weight. तो यहाँ पे 8 को ऐसे डिवाइड करना है कि सबके पास एक 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 तो, और उसके बाद जो रेस्ट 5 रह जाएंगे वो कैसे भी डिवाइड हो जाएंगे, है ना? There is no upper limit in the capacity of the box. Similarly, suppose he has 20 weights. So if he has 20 weights, he uses 4 containers. 4 containers means 5 boxes. 20 weights में क्या होगा? Each 2, तो यहाँ पे कितने weights यूटिलाइज हो जाएंगे? 8 यूटिलाइज यहाँ पे हो जाएंगे और 12 weights हमें यहाँ पे यूटिलाइज करने पड़ेंगे, राइट? देखो, therefore he uses 15 plus 4 boxes. 1 second. He has 20 weights and uses 4 containers. The remaining in such that each box. ठीक है, ठीक है, हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, राइट? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट? थोड़ा सा इसको लिखा रहने देते हैं, है ना? यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर है, राइट? The weight of each container is equal to sum of the weights in that container. The weight of each container is equal to sum of the weights in that container. एक कंटेनर के पास कितना वेट होता है? 2 kg होगा, राइट? ये तो हम श्योर हैं, राइट? Similarly, the weight of each box is equal to sum of the weights placed in that box. Box के पास weight पता नहीं है, but minimum कितना weight होगा हमारे पास? Greater than 1 kg, right? Greater than or equal to 1 kg. He places one or more container and or boxes along with weights contained there in the same pan of the balance for weighing the rice. अब उसको कुछ राइस को वेई करना है, तो वो कुछ मिक्स अप इन दोनों का यूज करता है ना? एंड वी हैव वन दिस कंडीशन ऑल्सो कि एक्स कंटेनर होंगे तो हमारे पास एक्स प्लस वन बॉक्सेस होंगे. ठीक है, यहां तक हमारा सेट इतना ही है, इसके आगे हमारा सेट कुछ नहीं कह रहा. ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे वन बाय वन, राइट? पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स नीडेड if the trader wants to weigh any quantity of rice from 1 to 27, right? From 1 to 27, 1 to 127, the trader wants to weigh any quantity of rice, and minimum हमें क्या करना है? कंटेनर्स को मिनिमम करना है, राइट? समझ आया? और टीटा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ज्यादा तुक्का वगैरह इसमें नहीं लगा सकते, राइट? सो अब तो इस क्वेश्चन में ना कोई ऐसे डायरेक्ट या कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं होता, है ना? वी नीड टू डू सम हिट एंड ट्रायल, राइट? वी नीड टू डू सम हिट एंड ट्रायल. तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, राइट? ओके, हमारा वो डेटा क्लीन हो गया, कोई बात. ठीक है, सेट समझ आ गया सभी को? तो थोड़ा सा ना हिट एंड ट्रायल करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट लेट्स से. देखो, हमें 1 to 127 सारे वेट करने हैं, लेट्स से. अगर और मिनिमम क्या करना है हमें? कंटेनर, है ना? अगर कंटेनर 1 होगा, राइट, मैं आपको बताता हूं. अगर कंटेनर 1 होगा तो बॉक्स 2 होंगे,
राइट। इस पे तो 2 kg आ जाएगा, और हमें 1 kg भी तो किसी में चाहिए वेट करने के लिए, तो 1 kg इसमें आ जाएगा, राइट। तो हमारा 3 kg बन गया, राइट। 2 + 1 3 बन सकता है, 1 2 3। अब 4 kg चाहिए, 4 kg के बियॉन्ड नहीं जाएगा, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, राइट। काफी क्लियर दिख रहा था, है ना। अगर यहाँ पे मैं 2 रखूं, यहाँ पे 3 रखूं, राइट, 3 बॉक्सेस और यहाँ पे 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस में कितना आ जाएगा, 2 + 2 मतलब 2 और 2 रखूंगा मैं इसमें, 1 फिर भी रखना पड़ेगा, और मेरा 2 भी वे हो जाएगा, 3 भी वे हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 के लिए मुझे 4 यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, यहाँ से 6 भी हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा, और 4 + 2 + 2 8 भी वेट हो जाएगा, 4 + 9 भी हो जाएगा, और 10 रखना पड़ेगा, राइट। 1 4 10 रखना पड़ेगा। बट फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना, फिर दिक्कत आएगी, तो ये चीज भी नहीं हो सकती, राइट। नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये बी हमारा, देखो 4 की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने 4 यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिया है ना। यहाँ पे जब 2 2 है तो यहाँ पे 1 तो आएगा ही आएगा, 2 यहाँ से हो जाएगा, 3 भी बन जाएगा, 2 + 2 4 भी बन जाएगा, 2 + 2 + 1 5 भी बन जाएगा, तो हमें 6 नहीं है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 + 1 7 भी बन जाएगा, 7 + 2 9, और 7 और 6 + 2 8 भी बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा, तो हमारे पास 11 भी बन जाएगा, तो 12, राइट। बट हमें 127 तक फिर भी नहीं पहुंचे, राइट। तो ऐसे हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, 3 और 4 अगर करेंगे, है ना, तो यहाँ पे 2 2 2, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा हम देखेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 तो लेना ही पड़ेगा, देखो 2 3 8 7 5, थोड़ा सा इसमें मेंटल कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो थोड़ा सा जैसे आसानी बन जाएगी, राइट। अब मैंने देखा 8 + 1 9, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 13 और 12 भी बन जाएगा, 14 भी बन जाएगा, 15 भी बन जाएगा, और 16 भी बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये भी हुआ, राइट। और थोड़ा सा अब मुझे शायद 32 पे आएगा, राइट। ठीक है, ये 3 4 का कॉम्बो था, है ना। अब अगर आप 4 और 5 का ट्राई करोगे, तो यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, 2 नहीं लेना पड़ेगा, 3 नहीं लेना पड़ेगा, 4 नहीं लेना पड़ेगा, 5 नहीं लेना पड़ेगा, राइट। 6 भी नहीं लेना पड़ेगा, 7 भी नहीं लेना पड़ेगा, 8 भी नहीं लेना पड़ेगा, शायद यहाँ पे डायरेक्ट अब 10 लेना पड़ेगा, राइट। 10 को लेके 11 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 13 14 15 16 17 18, मैक्स टू मैक्स 19 बन सकता है। 19 के बाद क्या नहीं बनेगा, 20, राइट। थोड़ा सा पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे *2 * 2 * 2 * 2 * 2, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 80 आ सकता है क्या, हाँ 40 के बाद ये सब बनते, ठीक है 80, तो थोड़ा सा पता लग रहा है पैटर्न बन गया ना। देखो डीआईएलआर में क्या होता है ना, हमेशा आपको बहुत थोड़ा बहुत आपको करवाएगा वो पेन, बट ऐसा नहीं है ना आपको सारे केसेस के लिए पेन करवाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। दैट वॉन्ट बी पॉसिबल एट एनी केस, राइट। 120 से, अब 80 से देखो कितना बन रहा है मैक्सिमम, 80 + 40 120, ठीक है। 80 + 40 120 यहां से बन गया, 128 भी बन गया, 126 + 127, तो 127 यहां से बन गया, सो 4 शुड बी माई आंसर, 4 शुड बी माई आंसर। थोड़ा सा पेनफुल क्वेश्चन था, बट अगर एलआरडी में आपको कभी भी ना थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ जाए ना, तो नेवर कम इन डाउट, जल्दी से हाथ चला लो उसको जितना चला सकते हो, ठीक है। इफ अ ट्रेडर यूजेस 6 कंटेनर्स, ठीक है, उसने 6 कंटेनर्स यूज किए हैं, तो बॉक्सेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 बॉक्सेस, राइट। इसमें 2 2 2 आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स, दैट इज 12 kg, राइट। ठीक है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इसीलिए सेट को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। He wants to weigh any quantity of rice from 1 to n. What is the maximum possible value of n? थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन ध्यान से किया होता तो ये और अच्छे से समझ आ जाता, इसमें बस उसका रिवर्स पूछा है ना। तो ये तो हमारा 2 2 2 हो गया, राइट। और हमें 1 तो लेना ही पड़ेगा, है ना। 1 के बाद हमें आप देख लो, आप क्लियरली बता सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट शुड बी 12, समझ आया इतना, नेक्स्ट डिजिट तो 12 होनी चाहिए, ये 12 बन जाएगी हमारे पास, सॉरी 12 तो बन जाएगी, 12 + 1 13 बन जाएगी, तो नेक्स्ट 14 होनी चाहिए, इतना समझ आया। अगर आपने पिछला सेट किया तो आपको पता लग जाएगा, दिस शुड बी 28 56 112 1 2 3 4 5, है ना, और 2 2 4 और 4 4 8। अगर आपने ये अच्छे से किया, इस पे मान लो आपने 5 मिनट भी लगा दिए, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं रहेगा ना, बिकॉज यू क्रैक द पैटर्न, राइट। जब आपने पैटर्न क्रैक किया, अब इसके बाद आपको ये ऐड करना है, नाउ इसका ऐड किया 12 + 1 13 + 14 27,
और ये 28 27 55 56 112 और 224 448 11 + 2 13 + 4 17 + 8 25 5 + 2 7 + 5 12 1 13 15 4 19 4 1 5 और 3 8 895 शुड बी माय आंसर। ठीक है, 895 शुड बी माय आंसर। काफी अच्छा सेट है ना, जैसे कैट अभी इस साल या अगले साल जैसे दे रहे हैं ना, वैसा वैसा सेट है। नाउ ईच कंटेनर कंटेन्स 3 वेट्स, नाउ ईच कंटेनर कंटेन्स 3 वेट्स ऑफ 1 kg, राइट। क्या बोल रहा है ये, नाउ ईच कंटेनर कंटेन्स 3 वेट्स ऑफ 1 kg। अच्छा, ईच कंटेनर, एक कंटेनर है, इस पे अब 3 वेट्स होंगे 1 kg के, ठीक, इंस्टेड ऑफ 2 वेट्स ऑफ 1 किट। ठीक है, 3 वेट्स ऑफ 1 kg। What is the minimum number of containers needed if the trader wants to weigh any quantity of rice from 1 to 127? 1 to 127 अगर उसको वे करना है ना। देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स नीडेड इफ द ट्रेडर वांट्स टू वे एनी क्वांटिटी, है ना। देखो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है कि पहले ऑप्शन से देखो 3 4 5 और मोर देन 5। तो हमें बेसिकली मिनिमम पे करना है तो हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 से स्टार्ट का फायदा नहीं है। सो लेट्स से c इज इक्वल टू 3, राइट। लेट्स से c इज इक्वल टू 3, तो बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, बॉक्सेस इक्वल टू 4, हर एक बॉक्स में एक एक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएगा वेट। 9 तक तो आप कुछ भी वेट कर सकते हो, राइट। आपको 10 वेट करना है ना। 10 वेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो 2 लेने का शायद फायदा नहीं होगा, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो हमारे पास 3 कंटेनर है ना, अब इंडिविजुअल वेट नहीं होगा ये, राइट। हमारे पास वेट होगा 3 kg 3 kg और 3 kg, ठीक है। 3 kg 3 kg 3 kg, ये हमारे पास वेट है। तो हमें यहाँ पे 1 तो लेना पड़ेगा, 1 लेंगे तो फिर हमें 2 भी लेना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद तो शायद हमें इसका मैक्सिमम कितना है, 9 + 3 12, तो यहाँ पे सीधा 13 ले सकते हैं, है ना। द मोमेंट यू टेक 13 एयर यू नो नेक्स्ट डिजिट शुड बी 26, राइट। अब देखते हैं मैक्सिमम इसका कितना आ रहा है। अगर इस सब का टोटल करोगे तो आप टोटल आपका आएगा 51, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, दिस चॉइस इज गोन। नाउ लेट्स से c इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5, राइट। c इज इक्वल टू 4 में आप क्या करोगे, 3 3 3 एंड 3, राइट। ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है ना, लैंग्वेज वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो क्रैक करना भी जरूरी होता है, राइट। c अगर 3 है तो हमें 1 तो लेना ही पड़ेगा और 2 भी लेना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, है ना। और फिर इसका मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, 15 है तो ये 16 हो जाएगा। कैन आई से नाउ द नेक्स्ट 2 वेट्स आर 32 एंड 64, राइट। द मोमेंट यू क्रैक दिस थिंग यू नो कि इसका 127 पॉसिबल है, राइट। सो C4 शुड बी माय आंसर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन, सी पहले क्वेश्चन जिसको समझ आ गया, जिसने यहाँ पे ना हाथ चला लिया, जिसपे हमें 5 मिनट में प्रैक्टिस कर ली हाथ चला के, उसके लिए ये क्वेश्चन वाज जस्ट अ सिटर, राइट। और सेट पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा, काफी छोटा सेट था, राइट। नाउ if the trader uses 6 containers and he wants to weigh any quantity of rice, trader is using 6 containers, so that box is 7, and he wants to weigh any quantity of rice from 1 to n, what is the maximum possible value of n? Very simple question, 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आएगा, 2 भी आएगा, राइट। 1 2 के बाद क्या आएगा, आप आराम से बता सकते हो, टेल मी। 1 2 के बाद क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, इसका मैक्सिमम कितना है, 18 + 3 21, तो यहाँ पे 22। 22 के बाद सीधा 44 लिख सकता हूँ, फिर 88 लिख सकता हूँ, 88 का डबल 176 लिख सकता हूँ, 176 का डबल 352, राइट। अब देखो अगेन पूरा सेट डिपेंड है, पूरे का टोटल करना है हमें, पूरे का टोटल करते हैं, जस्ट यूज कैलकुलेटर और मे बी एनीथिंग एल्स। यहाँ पे तो इसका 18 ही आ गया,
यहाँ पे 3 + 25 29 69 69 88 176 एंड 352 राइट। 16 + 9 5 8 + 8 16 685 + 18 तो 703 should be my answer. 703 should be my answer. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ ईच कंटेनर कंटेन्स 4 वेट्स ऑफ 1 kg। ठीक है, 3 की जगह 4 कर दिया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स नीडेड इफ ट्रेडर वांट्स टू वेट एनी क्वांटिटी ऑफ राइस। अगेन 1 to 127 का बोल रहा है। इसमें अगेन सेम अप्रोच होगी यार, समझाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। राइट, पहले सी को 1 लेते हैं, राइट, बॉक्स को 2 लेते हैं। सी को 1 लिया, बॉक्स को 2 लिया, क्या आ जाएगा? सी को 1 लिया, बॉक्स को 2 लिया तो 4 kg आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1 और 2 लेना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम कितना आएगा? 7 kg आएगा। 7 kg वे कर सकते हो मैक्सिमम। ऐसे ही सी को 2 और 3 लोगे, है ना, फिर लोगे। ठीक है, नाउ इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट्स में। राइट, आपको इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट्स में, किसका क्या राइट आंसर होगा। राइट, काफी सिंपल है। ठीक है, आप करोगे तो आपका आना भी चाहिए। अब क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेडर यूजेस 6 कंटेनर्स, कंटेनर्स उसने 6 यूज करे हैं, एंड ही वांट्स टू वे एनी क्वांटिटी ऑफ राइस, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। काफी सिंपल है यार, इसमें मतलब कुछ भी समझाने वाला नहीं है। राइट, 6 कंटेनर है तो बॉक्स कितने हैं? 7। आपको पता है ये वेट है 4 4 4 4 4 4। राइट, ये 1 आएगा, ये 2 भी आएगा, 3 यहां से आ जाएगा, 4 यहां से आ जाएगा। तो इसके बाद आपको 1 2 के बाद पता है वैल्यू क्या आएगी? 24 + 3 27 28 56 112 224 राइट, एंड 448 राइट, 896। ठीक है, कितना हो गया? 1 1 2 3 4 5 6 7। इसका टोटल का सम और इसका टोटल का सम। ठीक है, आप अगर देखोगे तो ये तो जीपी बन रही है, सॉरी ये 3 अलग छोड़ दो, ये तो सारी जीपी बन रही है 5। तो ऐसे भी सम कर सकते हो। दैट शुड बी योर आंसर। इसका और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता देना। आई विल वेरीफाई एंड आई विल पिन द आंसर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।